ویلکم بیک۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے تحت صوبے بھر میں گرین انرجی کے منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ساتھ دورہ چین میں بھی مفاہمتی یادداشت کے کئی اہم منصوبے پر دستخط ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کراچی میں 2 روزہ سولر ٹریننگ پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں تقسیم اسناد کے لیے منعقد کی گئی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ سید ناصر حسین شاہ نے کہا کراچی میں سولر پارک منصوبہ بھی جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ تو دوسری جانب سندھ حکومت نے دیہی معیشت کی ترقی کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے سندھ کے کسانوں اور ماہی گیروں کو مالی اور تکنیکی طور پر مستحکم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے کسانوں اور ماہی گیروں کو جدید آلات اور ٹیکنالوجی بھی فراہمی کی جائے گی۔ اس ضمن میں چیف سیکریٹری سندھ آصف پیدا شاہ کے زیر صدارت کراچی میں منعقد سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری سندھ نے کہا ہے کہ موجودہ کوآپریٹو سوسائٹی ایکٹ صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے تک محدود ہے، تاہم کوآپریٹو سوسائٹیز کو مزید فعال بنایا جائے گا۔ اجلاس کے دوران متعلقہ سیکریٹری نے مجوزہ سندھ کوآپریٹو گورننس ایکٹ 2025 پر بھی بریفنگ دی۔ خبر یہ ہے کہ ٹی ایم سی مومن آباد کے ٹاؤن چیئرمین ملک عارف عوان نے کہا ہے کہ شب برات کے موقع پر مومن آباد ٹاؤن کے تمام قبرستانوں میں آنے والے زائرین کو ہر تمام سہولیت فراہمی کی جائیں گی۔ شب برات سے قبل کی جھاڑیوں کی کٹائی اور لائٹنگ کا کام بھی مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ بات چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن مومن آباد ملک عارف عوان نے سید زین علی شاہ کے ہمراہ شب برات کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے قبرستانوں کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ٹاؤن انتظامیہ کے افسران کے علاوہ کوارڈینیٹر ٹاؤن چیئرمین معراج شاہ اور فوکل پرسن حضرت حیات بھی موجود تھے۔ ملک عارف عوان کا کہنا تھا کہ شب برات پر قبرستانوں میں آنے والے زائرین کو ہر ممکن سہولیت فراہم کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ چیئرمین سہراب گوٹ ٹاؤن لالا عبد الرحیم نے کہا ہے کہ ان کے دروازے ہر خاص عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق عوام کی خدمت کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹاؤن آفس میں عام شہریوں سے ملاقات کے دوران کیا۔ ٹاؤن چیئرمین لالا عبد الرحیم نے آتے ہوئے تمام لوگوں کی شکایت غور سے سنی اور انہیں حل کرنے کے لیے بروقت متعلق افسران کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ لالا عبد الرحیم کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنے ووٹر کے مسائل حل کرنے میں انہیں دلی سکون ملتا ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں شب برات اور سالانہ تبلیغی اجتماع سے قبل پورے علاقے میں قائم غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ صفائی و ستھرائی سمیت شہریوں کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کرنے کے لیے ترقیاتی کام بھی ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیے گئے ہیں۔ اورنگی ٹاؤن میں ٹی ایم سی چیئرمین حاجی جمیل ضیاء اور میونسپل کمشنر آغا فہد کی خصوصی ہدایت پر شب برات سمیت سالانہ تبلیغی اجتماع کے موقع پر شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹاؤن بھر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور مہم شروع کر دی گئی ہے۔ شہنائی ہال، بنارسی مسجد، اسلام چوک، بھاشانی سویٹس، طیبہ مسجد سے جوہر چوک اور علی نگر سے جرمن اسکول تک قبرستانوں کے اطراف اور اجتماع گاہ گلشن بہار آنے اور جانے والے تمام راستوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ مختلف کارروائیوں میں بڑی مقدار میں منشیات برآمد کر کے 2 منشیات فروشوں کو بھی دھر لیا گیا۔ ترجمان ENF کے مطابق اٹک کے علاقے 3 میلہ چوک کے قریب کارروائی کی گئی۔ اس کے دوران تعلیمی اداروں میں طلبہ کو منشیات فروخت کرنے والا ملزم منشیات سمیت پکڑا گیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی اور ناقص کارکردگی کے باعث کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر میں غیر معمولی تاخیر سے کراچی کی عوام شدید مشکلات سے دوچار ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کے کہنا تھا کہ انڈر پاس کا دورہ کرنے کے بعد شہریوں اور میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر میں بلا وجہ تاخیر سے نہ صرف مقامی تاجر پریشان ہیں بلکہ کریم آباد سے گزرنے والا کراچی کا ہر شہری اذیت میں مبتلا ہے۔
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नया सरबराह मिल गया। सफदर भग्गियों को डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी गई है। ग्रेड 20 के अफसर सफदर भग्गियों इस वक्त डीजी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। अपडेट कर रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को नया सरबराह मिल गया है। सफदर भग्गियों को डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। ग्रेड 20 के अफसर सफदर भग्गियों इस वक्त डीजी लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद को जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। अफाक अहमद को लांडी और अवामी कॉलोनी थानों की हदूद में पुरतशद्दुद वारदातों में गाड़ियां जलाने के मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस रिमांड में देने से इनकार कर दिया और इन्हें जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। सुपरिटेंडेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन कोरंगी कैस खान ने बताया है कि अफाक अहमद के कहने पर लांडी में पुरतशद्दुद वाकयात और गाड़ी जलाई गई थी। उन्होंने बताया कि अवामी कॉलोनी के इलाके में फरीद खान ने एफआईआर नंबर 103 दर्ज करवाई है। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिमान ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर ट्रक को आग लगाई। एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद ने कहा है कि डंपर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट कराची की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। शाही सैयद ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि डंपर्स और दीगर हैवी ट्रांसपोर्ट का शहर कराची की तामीर और तरक्की में अहम किरदार है। हैवी ट्रांसपोर्ट का शहर में दाखिला बंद करना मसले का हल नहीं, हुक्मरान मसले का हल निकाले ताकि हादसात को रोका जा सके, कीमती जानों के नाकाबिल तलाफी नुकसान से भी बचा जाए। कराची में कचरा उठाने वाली गाड़ियों और जरूरी हैवी गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगा रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध जिया लंजार की ट्रैफिक हादसात के हवाले से आला सतह के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 6 बजे तक रोड पर आ सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियों की टेकिंग करवाई जा रही है, जबकि 3,500 हैवी गाड़ियों की 15 दिन में टैगिंग करवाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन करवाई जाए वरना चालान होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि ट्रैफिक इंतजामात को बेहतर कर रहे हैं। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने माली बाकायदगियों पर असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, अब्दुल रहीम शेख को मुअत्तल कर दिया है। इन्हें महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने की हिदायत भी कर दी गई। अब्दुल रहीम शेख फराइज में गफलत बरतने और माली बाकायदगियों में मुलव्विस होने पर मुअत्तल किए गए हैं। कमिश्नर कराची ने अपने खत में कहा है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कंट्रोल करने में असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल रहीम शेख नाकाम हो गए थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान का दौरा किया, यादगार शौदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर कराची पहुंचने पर डीजी रेंजर मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला ने यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी भी की है। रेंजर्स ने हेडक्वार्टर्स में वफाकी वजीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इन्हें सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन, स्मगलिंग की रोकथाम और पानी चोरों से मुतालिक कार्रवाई के तफसील भी बताई गई। वजीर दाखिला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध की सरजमीन कदीम तारीख, वसी सकाफतों और बेपनाह सलाहियतों से माला माल है। हम उन चैलेंजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो हमारी तरक्की में हाइल हैं। सिंध हुकूमत इन तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने और आगे बढ़ने की भरपूर सलाहियत रखती है। हमें इन रुकावटों को तस्लीम करना चाहिए जिनका सामना है और इन तमाम रुकावटों को दूर करना हमारा मिशन है। Karachi, which was at the time of independence a few thousand people, has grown astronomically, and with a city of population of more than 20 million with the recent count, the infrastructure is lagging far behind, and we're totally aware of this. What we're doing is making sure that we build the water infrastructure, bring in more water into the city to fulfill the needs of the 20 million plus people, wastewater.
यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कराची में सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब डाकुओं की फायरिंग से जामिया कराची का मुलाजिम तारिक सईद जान बहक हो गया। 11वां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान डाकुओं ने खातून समेत 10 अफराद को इब्तदाई नींद सुला दिया। पुलिस के मुताबिक सुपर हाईवे जमाली पुल कोलहाड़ी चौक के करीब फायरिंग से 50 साल शहरी तारिक वल्द सईद के जान बहक होने की इत्तला मिली, जिस पर पुलिस और रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया और मकतूल की लाश ज़ब्त की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाई। सिंध हुकूमत शहर कराची वालों को देना कुछ नहीं जानती। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान कहते हैं कि शहर में सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं, लाइट्स है नहीं, शहरियों का मौशी कत्ल हो रहा है। 3 करोड़ की आबादी रखने वाले शहर के लिए महज 300 सरकारी बसें चल रही हैं। इस शहर के लोगों ने बहुत खराब हालात देखे हैं। अब ये नहीं चाहेगा कि इस शहर के लोगों को दोबारा एक मरतबा आग में झोंक दिया जाए। हमें हुकूमत सिंध को मुतलबा करते हैं कि जो आपके करने के काम हैं, आपने वो काम नहीं किए। ये डंपर गिराते फिरते हैं, शहर की सड़कें खस्ता हाल है। ये टैंकर, ये ट्रॉली। कराची के नई सब्जी मंडी में भत्ता न देने पर दुकानदारों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। दुकानदारों का इल्जाम है कि मार्केट कमेटी के हुकाम ने दुकानों पर कब्जा करवाना शुरू कर दिया है, जबकि भत्ता न देने वालों को हिरासा भी किया जा रहा है। महकमा एंटी करप्शन ने मामले का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और डीजी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को खत लिख दिया है। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी हैदराबाद को 24 फरवरी को तलब भी कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की सरबराही में गवर्नर हाउस में तकरीब रेड स्टोन एनर्जी और सर सईद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गवर्नर सिंध कहते हैं कि हेनास मुआहदे से सर सईद यूनिवर्सिटी को सालाना 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। जो अखराजात बिजली पर खर्च होते थे अब वो तहकीक और तरक्की और तलबा की तालीमी ज़रूरियात पर सिर्फ होंगे। इफ्तार और डिनर में शरीक अफराद में बज़रिया कुरानदाजी इनामात भी तकसीम किए गए। गैस और पानी की बंदिश के बाद स्टील मिल्स इंतजामिया ने रिहायशी कॉलोनी में कचरे की भी ढेर लगा दी हैं। तफसीलात शहरियार शौकत की रिपोर्ट में। स्टील मिल्स की बंदिश के बाद इंतजामिया रिहायशी कॉलोनियों को बड़े बड़े बिल तो भेज रही है, लेकिन सहूलियात खत्म करती जा रही है। पानी और गैस की बंदिश के बाद एहतजाज रंग लाया। पानी तो आ गया लेकिन गैस ताहाल बंद है। स्टील मिल्स के झेली इदारे हदीद कमेटी ने कई माह से सफाई के अमले को तनख्वाहें अदा न की तो उन्होंने काम ही छोड़ दिया और इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। इलाकाई चेयरमैन ने मेयर कराची से राब्ते के बाद इलाके में सफाई और घर घर कचरा उठाने का काम तो शुरू कर दिया, लेकिन कमेटी का अमला ताहाल तनख्वाहों से महरूम है। मुंतखब नुमाइंदों का कहना है कि अवाम की हालत देखकर मजबूरन स्टील मिल्स इंतजामिया के काम भी हम और हमारा अमला कर रहा है। कैमरा टीम के साथ शहरियार शौकत, 5 न्यूज़ कराची। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए एम्बेसडर्स का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। भारत के साबिक खिलाड़ी शेखर धवन और न्यूजीलैंड के टिम साउथी भी एम्बेसडर मुकर्रर। ऑस्ट्रेलिया के साबिक ऑलराउंडर शेन वॉटसन में भी एम्बेसडर को मुकर्रर किया गया है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज के साथ।